Hello, Chapadi. I'm your physics faculty from school.com, and today we are going to start the next topic of this chapter. In previous topic, we have to talk about what is the EMF of the cell, what is the internal resistance, what is the terminal potential difference. इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया, but today we are going to talk about the combination of the cell. So next topic is combination of cell. Combination of cells. Okay, combination of cells. In an electrical circuit, only a single cell can't provide a big amount of current. So, to flow the big amount of current in an electric circuit, we use a two or more than two cells. Okay, and these cells may be connected in series, parallel, or mixed grouping according to our convenience. And we can make a powerful battery by the combination of the cell. So there are the mainly three type of combination of cells: series combination, parallel combination, as well as mixed combination of the cell. तो first heading लगाएंगे बेटा series combination of cell. Series combination of cells. Okay, in series combination of cells, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of another cell and so on. जो हमने प्रोसेस इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिजाइन किया था, जब हमने डिस्कशन किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, सेम वही प्रोसेस होगी किसमें, सेल्स में. ठीक है, तो द पॉजिटिव टर्मिनल of one cell, the positive terminal of one cell is connected to negative terminal of another cell, is connected to negative terminal of another cell and so on. अभी इसको समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में वी स्टडी द टू केसेस. हम दो केस की स्टडी करेंगे. फर्स्ट केस में हम उस बात की स्टडी करेंगे कि जितने भी हम सेल्स लेने वाले हैं उन सभी सेल्स का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, दैट मींस सेल्स आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो. और दूसरे केस में हम इस बात की स्टडी करेंगे कि जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, दैट मींस वो आइडेंटिकल नहीं है. तो फर्स्ट केस बेटा, केस नंबर वन, if n cells are connected in series, which EMF and internal resistance are different. Okay, or different. इतनी बात क्लियर. This is the first case. अब यहां पर हम जो सेल्स लेने वाले हैं, सपोज करिए this is the first cell and this is the internal resistance. Its EMF is E1 and its internal resistance is R1. In the same way जो हम दूसरा लेंगे यहां पर जो सेल, its EMF is E2 and internal resistance is R2. Next जो सेल लेंगे बेटा, its EMF is E3 and internal resistance is R3. In the same way, we can take the n number of cells of different EMF and internal resistance. Okay, अब क्या करना है बेटा,
this is the positive terminal, this is the negative terminal, this is the positive, this is the positive, this is the negative. इतनी बात क्लियर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में कैसे कनेक्ट करते हैं सेल्स को, इसको समझते हैं। तो मैंने कहा है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल एंड सो ऑन। दैट मीन्स उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल एंड the positive terminal of the third cell is connected to the negative terminal of the second cell and so on. That means कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा। तो ये कैसे फिगर डिजाइन हो जाएगा, इधर देखिएगा बेटा, इस तरीके से कुछ फिगर बन जाएगा, इस तरीके से कुछ इस तरीके का फिगर डिजाइन होगा। ओके, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा अपना। ठीक है, इसको जरा रफ कर देते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये अपना फिगर बने, इसका EMF कितना है बेटा, E1, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इट्स EMF इज E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, its EMF is E3, its internal resistance is R3 and dot dot its EMF is En and its internal resistance is Rn. इतनी बात के लिए। And this combination of cells is connected to a resistive wire which resistance is capital R. So this combination of cells is connected to a external resistance which resistance is what, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो कुछ इस वे से इसको बना देंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो ये आपका सेल नंबर क्या हो जाएगा 2 एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये इसका सेल नंबर क्या हो जाएगा बेटा 3। In the same way, इसका EMF is En and internal resistance is Rn, तो ये सेल नंबर क्या हो जाएगा N। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो जब हम इन सेल्स को सीरीज में कंबाइंड करेंगे, ऐड करेंगे, तो होगा क्या, ये सभी कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में। तो यहां से करंट फ्लो होगा, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो यहां से करंट फ्लो होगा, आई हैव टू सपोज दैट करंट इज कैपिटल आई, तो यहां से इस वे से करंट फ्लो होगा, इस वे से। ओके, तो यहां पर बेटा मेंशन करेंगे कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज connected to negative terminal of another cell, is connected to the negative terminal of another cell and an external resistance capital R is connected to the combination of cells। इतनी बात के लिए। तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो अब इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे बेटा, ध्यान से समझिए आगे की बात। यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, तो यहां से भी कितना करंट फ्लो होगा, आई करंट फ्लो होगा। तो यहां से सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बिकॉज इसका ईएमएफ इज E1, सेकंड सेल का ईएमएफ E2, थर्ड सेल का ईएमएफ E3 एंड लास्ट सेल का ईएमएफ इज En। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल? तो फर्स्ट इज व्हाट, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, of combination of cells
इसको डिनोट करेंगे बेटा कैपिटल ई से, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ ऑफ द सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा En, दैट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ। बिकॉज ईएमएफ को हम एज अ वोल्टेज ट्रीट कर सकते हैं, और वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेपरेट होता है। इस वजह से इसका जो टोटल वोल्टेज होगा वो इन सभी सेल्स के इंडिविजुअल ईएमएफ के सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट बात, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बिकॉज सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इन सभी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, then we can write beta equivalent internal resistance, equivalent internal resistance of combination of cell, cells। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यू कैन मेंशन, इधर R डैश इज इक्वल टू R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn, दे आर इन सीरीज, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस व्हाट Rn, ठीक है, इतनी बात के लिए। नेक्स्ट, जब ये आपके सीरीज में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे सभी सेल्स को, तो इससे जो करंट ड्रॉन होगा इस कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स से, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स को इस दुनिया में क्या बोलते हैं बेटा, बैटरी। तो दिस इज व्हाट, अब इसको एक न्यू नेम दे देंगे बैटरी। देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यू कैन से द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, ठीक है। नाउ वी कैन राइट current drawn from the combination of cells। तो यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बेटा इन प्रीवियस टॉपिक जिसमें हमने डिस्कशन किया था, द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां पर हमने स्टडी किया था I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ओके। तो यहां से अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, E1 प्लस E2 प्लस E3, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट अभी निकालना बचा है। तो इधर जरा इसको रब कर देते हैं बेटा, फिर आगे की बात करते हैं, ओके। इसको जरा रब कर देते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन के लिए स्पेस मिल जाए, ओके। देखो बेटा इधर बात सब, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कैसे डिटरमाइन करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो you are seeing that this is what, this is a circuit, in this the internal resistance and external resistance are in series। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना है बेटा, R डैश। तो यहां से क्या हो जाएगा R डैश प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R, दे आर इन सीरीज, तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट R डैश प्लस कैपिटल R। अब यहां से करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, तो यहां से I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा बेटा En अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R डैश प्लस कैपिटल R, तो R डैश प्लस कैपिटल R। अब यहां से R डैश आपको इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए बेटा।
then we can write I is equal to E1 plus E2 plus E3 plus dot plus En upon कैपिटल R प्लस R डैश का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट प्लस व्हाट Rn। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा बेटा किसके लिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। ठीक है, बट इसमें कुछ कंडीशंस लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, या इसी का स्पेशल केस समझ लो, स्पेशल केस दैट इज व्हाट, कि अगर अभी अभी जो हमने सेल्स लिए थे उनका ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट था, दैट मींस वो आइडेंटिकल नहीं थे। सेकंड केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि द cells which we have to take in and these cells are connected in series which EMF and internal resistance are same, that means the cells are identical। तो यहाँ पर स्पेशल केस में if cells are identical, या इसी को आप केस नंबर 2 भी दे सकते हैं नेम, if cells are identical, if cells of what identical, ठीक है, दैट मींस इनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा। तो इसके लिए इस फॉर्म, अब यहां पर चलो इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं आसानी से। इसका ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, सेम। तो अब इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा बेटा E plus E plus E plus dot कहां तक, N तक। That means we can write N into E, N into E। ठीक है, अगर सपोज दैट इसका EMF 5, इसका भी EMF 5, इसका भी EMF 5, यहाँ पर 3 सेल्स है, तो हम क्या करेंगे, एक EMF लेंगे दैट मींस 5, और कितने नंबर ऑफ सेल्स है 3, तो किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से, तो कितना इसका टोटल EMF यानी इक्विवेलेंट EMF आ जाएगा 15। ठीक है, सिंपल सी बात है। और या तो आप 5 प्लस 5 करिए तो भी कितना आएगा 15। इस वजह से जब ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो डिफिकल्टी होगी, इस वजह से हम नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर लेंगे और एक सेल के ईएमएफ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स मिल जाएगा। तो यहां से एनी एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस डॉट कहां तक, N तक। तो इसको भी वी कैन राइट व्हाट बेटा, N into R, N into R, बिकॉज अगर इसका आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम बिकॉज आइडेंटिकल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, जब सेम होगा तो 2 प्लस 2 दैट मींस 6 ओम फॉर द 3 सेल्स। तो यहां पर अगर हम क्या करें कि एक सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट करें दैट इज 2, और कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं तो 3, तो कितना आ जाएगा 6। ये बात क्लियर है बेटा। तो यहां से इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, NR। नाउ इन दिस केस द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, नाउ current drawn from the combination of cells I is equal to equivalent EMF upon equivalent resistance of circuit। तो यहां से फॉर्मूला फिर एक बार मेंशन कर देते हैं, इक्विवेलेंट EMF upon equivalent resistance of circuit, equivalent resistance of what, circuit। तो इधर I is equal to क्या हो जाएगा, equivalent EMF। तो equivalent EMF is बेटा NE, okay, and equivalent resistance of circuit। तो you are seeing that equivalent internal resistance हमें पता है that is what, N into small r, and the external resistance are connected in series। तो equivalent resistance of this circuit क्या हो जाएगा, इसका equivalent resistance इस internal resistance का and plus the value of
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां से वी कैन राइट R प्लस एन आर, R प्लस एन आर। तो ये वैल्यू आ जाएगी फॉर व्हाट, व्हेन द सेल्स आर आइडेंटिकल एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, अब यहीं से हम कुछ कंडीशंस वेरीफाई करेंगे। कंडीशंस क्या होनी चाहिए बेटा, कंडीशंस को जरा समझते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू कितना है, एन ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल एन इंटू स्मॉल r। This is the formula of combination of the cells when they are connected in series। अब यहां से बेटा कंडीशन 1 सपोज करें कि if n r is very very less than the capital R, that means the equivalent internal resistance of the combination of the cell is much less than the value of external resistance। यानी जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड किया था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो होगा क्या, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत मिनिमम वैल्यू है। और इस मिनिमम वैल्यू में अगर ये बहुत मैक्सिमम इसमें कुछ भी ऐड करोगे, सपोज इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू बहुत कम ऑलमोस्ट 0.0001 है, तो ये समथिंग कितना हो जाएगा, इस तरीके से आएगा, तो ऑलमोस्ट किसके इक्वल रहेगा, 1 की। इस वजह से हम इस टर्म को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा। तो यहां से वी कैन राइट I इज इक्वल टू एन ई अपॉन, इधर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया इस पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे वी आर सीइंग दैट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल सेल। यहां से लिखेंगे बेटा, अभी इसको समझाता हूं, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द combination of cells is equal to n times, is n times of the current produced by a single cell, current produced by a single cell। okay, you are seeing that n times, और जो करंट फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर सेल, एक सिंगल सेल, उसकी वैल्यू कितनी हुए है बेटा, E अपॉन R। मैंने कहा था इधर देखो, ये आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस था, इसका EMF कितना था E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था R। अगर करंट निकालना है तो फार्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो हियर वोल्टेज इज इक्वल टू द EMF ऑफ द बैटरी, EMF ऑफ द सेल, and the resistance is equal to the internal resistance, that's why we can write E upon R। अब यहां से ये बात हमें क्लियर है कि ये सिंगल सेल जो करंट प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू E अपॉन R। तो यहां पर जब ये केस अप्लाई होगा, ये कंडीशन अप्लाई होगी, तो दैट इज द n टाइम्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम जितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, I इज इक्वल टू E अपॉन R। तो यहां से ये बेनिफिट है हमें। लेकिन कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 को देखिए बेटा इधर जरा, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, इसी में अगर क्या करें कि अगर आपका NR इज वेरी 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 ग्रेटर देन द कैपिटल R हो जाए। ठीक है, अब यहां से क्या है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the combination of the cells is much larger than the external resistance। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। सेम वही केस, अगर अब यहाँ पर ये कैपिटल R हो जाए, ये आपका NR हो जाए, तो इसको भी ये ऑलमोस्ट कितना होगा 1, तो इसकी ये वैल्यू को क्या करेंगे, नेग्लेक्सिबल सपोज कर लेंगे। तो यहां से बेटा इसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, NE अपॉन कैपिटल R प्लस N इंटू R। तो यहां से I इज इक्वल टू, इसको हमने क्या किया, नेग्लेक्ट किया, तो वी कैन राइट I इज इक्वल टू NE अपॉन N इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल r।
ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज नेग्लेक्सिबल। तो यहां से फॉर्मूला वी कैन राइट आई इज इक्वल टू व्हाट, ई अपॉन स्मॉल आर, ई अपॉन स्मॉल आर। यू आर सीइंग दैट इन दिस केस, किस केस में, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है, then current drawn from the combination of the cell is equal to the current produced by the single cell। आप चाहे जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को कनेक्ट कर दीजिए, बट अगर ऐसी कहानी है, ऐसी कंडीशंस है, तो जो करंट ड्रॉन होगा उस कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल से, वो सिंगल सेल्स से करंट प्रोड्यूस है उसके इक्वल होगा। तो इससे कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं। इस वजह से हम हमेशा अगर सीरीज में अगर सेल्स को कंबाइंड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, इट्स कंडीशन को। ओके, नेक्स्ट केस बेटा समझते हैं, तो इसको जरा पास कर दीजिए और इसको नोट कर दीजिए, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। parallel combination of cells। okay, parallel combination of cells क्या है? In this combination of cells, the positive terminal of all the batteries is connected to the one point and the negative terminal of all the batteries is connected to the another point। Then such type of combination of cell is known as the parallel combination of the cell। तो इधर मेंशन करेंगे, if you can write if positive terminal of all the cells, if positive terminal of all the cells is connected to one point and the negative terminal of all the cells are connected to another point, इतनी बात क्लियर। Then such type of combination is what, parallel combination। इसको जरा समझते हैं। Suppose that this is the cell which internal resistance is R1 and EMF is E1, and this is the another cell which internal resistance is R2 and EMF is E2, and next cell which internal resistance is R3 and EMF is E3। Then this is the positive terminal, this is the negative, this is the positive, negative, this is positive, this is negative। Then in parallel combination of the cells, the all positive terminal of the cells is connected to one point, एक particular point से connect हो जाए, and the negative terminal of all the cells is connected to the another point। So this is the point, this is the point, इस point से connected है। Then such type of combination of cell is known as what, parallel combination of cell। तो इसमें भी बेटा हम दो केस की स्टडी करेंगे। एक केस में हम जो सेल्स लेंगे वो आपके आइडेंटिकल होंगे, और दूसरे केस में जो सेल्स होंगे वो आपके आइडेंटिकल नहीं होंगे। दैट मींस उनका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ डिफरेंट होगा। तो केस नंबर 1 इधर क्या है बेटा, केस नंबर 1 कौन सा केस लेंगे? इफ सेल्स आर identical, if cells are identical, अगर सेल आपके कैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो इसके लिए बेटा जरा देखो इधर कैसे फिगर बनेगा। This is the cell 1 which EMF is E and internal resistance is R। This is the cell 2 which EMF is also E and internal resistance is R। This is the cell 3
which EMF is E and internal resistance is R. In the same way, बेटा यहां से this is the nth cell which EMF is E and internal resistance is R. जब हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देंगे ऑन दिस वे एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल्स को कनेक्ट कर देंगे ऑन दिस वे, ठीक है। एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इज कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, is connected to the external resistance, which resistance is capital R, which resistance is capital R, that is also known as the load. इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोड भी बोलते हैं, ओके। अब यहां से क्या होगा कि ये जो सिंगल सेल है जिसका EMF is and internal resistance R, ये करंट फ्लो करेगा, I have to suppose this is I1 एंड ये भी आपकी करंट फ्लो करेगा, दैट इज I2, ये भी आपकी करंट फ्लो करेगा, दैट इज व्हाट I3, एंड इसी तरीके से यहां से भी ये करंट फ्लो करेगा, दैट इज व्हाट, क्या हो जाएगा ये आपका IN। इतना बात क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है ओके बेटा। तो यहां से जो करंट फ्लो होगी, टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी I, बिकॉज इस जंक्शन में I1 करंट रीच करेगा, I2 करंट की एक्सेस होगी I3 एंड IN, तो जितने भी नंबर ऑफ करंट्स है उन सभी का सम दैट इज इक्वल टू व्हाट I, ओके। एंड यू आर सीइंग दैट कि द इंटरनल रेजिस्टेंस व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट internal resistance of combination of cells को क्या बोल सकते हैं बेटा, दैट इज व्हाट, दैट इज द बैटरी। तो इधर से क्या हो जाएगा आपका R, कैसे फाइंड आउट करेंगे, we know that the formula of a parallel combination of cells किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, 1 upon R dash is equal to 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R plus dot 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 plus इधर कितना हो जाएगा आपका 1 upon R and number of internal resistance, तो यहां से we can write 1 upon R dash is equal to n by कितना हो जाएगा R, तो यहां से R dash is equal to what, R by n, R dash की वैल्यू कितनी हो जाएगी R by n, इतना बात समझ में आया, दैट इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अगली बात यहां से द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट EMF कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इक्विवेलेंट EMF के लिए एक बात समझते हैं, यहां पे हम इन EMF को ट्रीट कर सकते हैं एज अ वोल्टेज, इक्विवेलेंट EMF ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, you are seeing that these cells are connected in parallel, तो इनका जो वोल्टेज है, वोल्टेज बिकॉज EMF को हम एज अ वोल्टेज भी कंसीडर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, तो they are connected to one point, they are connected to the another point, that means we know that in parallel combination the voltage is same, तो वोल्टेज सेम रहेगा, तो यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट EMF होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट E, बिकॉज इसका ही तो इसका भी सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। अगली बात, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, तो यहां से करंट कितनी ड्रॉन हो रही है बेटा इस कॉम्बिनेशन से, कैपिटल I, नाउ वी कैन राइट करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ the cells, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, I is equal to इक्विवेलेंट EMF फॉर्मूला याद करिए बेटा जरा, अभी अप्लाई किया प्रीवियस टॉपिक में, इक्विवेलेंट EMF अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का
तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R बाई N, और आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। नाउ दे आर इन सीरीज, ये आपके सीरीज में होंगे, तो I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट EMF इज E अपॉन, यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए R बाई N और इसके लिए कैपिटल R, तो वी कैन राइट R प्लस R डैश, तो I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस द वैल्यू ऑफ R डैश इज इक्वल टू द R बाई N। तो यहां से क्या हो जाएगा, R बाई N, when we take LCM then we can write I is equal to E upon N कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन N, N को ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट व्हेन द cells are connected in parallel combination, या when the cells are connected in parallel। ये बात क्लियर। अब यहां से फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर ऐसा हो कि the equivalent internal resistance of the parallel combination of the cells is less than the external resistance या is greater than the external resistance, तो क्या कंडीशन होगी, इसको समझते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट कि हमें किस वे में कनेक्ट करना चाहिए और किसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, इन सभी चीजें मैटर करती हैं बेटा। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें जबरदस्त करंट चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल से, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ बैटरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो यहां से ये समझिए फॉर्मूला क्या है बेटा, I is equal to NE upon N capital R plus small r। Then condition number one, if small r is very less than the NR, that means this is the equivalent, no, it is not the equivalent resistance, this is the equivalent resistance, या you can say। अब बिकॉज यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये सभी कैसे हैं आपके, ये सभी आपके पैरेलल में है, सेम है, सिमिलर है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर ये कहानी है कि इसकी वैल्यू बहुत कम है और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट मींस इसको हमें क्या करना होगा, नेग्लेक्ट करना होगा बेटा। तो यहां से I इज इक्वल टू NE अपॉन, when we neglect small r then सिर्फ और सिर्फ केवल क्या बचेगा, N into कैपिटल R, कैंसल आउट कर दीजिए, तो I is equal to the E अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। इन दिस केस कि जब when R is very less than the N into capital R, then the current drawn from the combination of the cells is equal to the current produced by a single cell। यहाँ पे ये सेल कितनी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो I is equal to the E upon R, I1। तो यहाँ पर I is equal to क्या होगा, I1। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज आप चाहे जितने सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करिए, जो आपका जो फाइनल करंट है जो बार प्रोड्यूस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक पर्टिकुलर सेल से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसके इक्वल होगा। तो क्या बेनिफिट हुआ बेटा, या तो हम एक सेल यूज कर ले या तो बहुत सारे सेल यूज कर ले, तो कोई मतलब है नहीं। तो इस वजह से इससे कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 कि इफ R is greater than 2NR या very greater than 2NR, so in this condition the value of external resistance is much less than the value of the internal resistance of the cell। तो that means ये बहुत कम है, तो इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला I is equal to NE upon NR, here neglected, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, R। तो you are seeing that कि ये फॉर्मूला आ जाएगा। Then the current drawn from the parallel combination of the cell capital I is equal to the n times the current produced by the single cell। That means आप जितने नंबर ऑफ सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, तो उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका कितना होगा, n टाइम्स होगा। ठीक है, I is equal to the NE upon R। तो यहां से ये बेनिफिशियल है
तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इस तरीके का सिस्टम प्रिपेयर करते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहे इन सेल्स का वो बहुत ज्यादा रहे एज कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, इसी में नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है बेटा? ओके, नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, the parallel combination of the cells when its internal resistance and EMF are different. The parallel combination of cells when its internal resistance and EMF are different. ओके, इस केस को जरा समझते हैं। सपोज बेटा इसका जरा फिगर बनाते हैं। सपोज दिस इज द फर्स्ट सेल, which EMF is E1 and internal resistance what R1, and this is the next cell which internal resistance is R2 and EMF is E2, and this is the next cell which EMF is E3 and internal resistance is what R3। ओके, अब हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्पेशलिटी है कि जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल हो उसको एक पॉइंट से और जितने भी नेगेटिव टर्मिनल हो उसको एक अनदर पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। तो मैंने इनको इस वे से क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल is connected to a external resistance capital R which is also known as the load. So this is the external resistance capital R. Okay, now this cell produced the current is I1 and this cell produced the current I2 and this cell produced the current is I3. At this point, this is the junction when I1 current access at this point and I2 and I3 current access at this point, then the total current कितना हो जाएगा, कैपिटल I. So this is the current drawn from the parallel combination of the cells when its EMF and internal resistance are different. Okay, इतना बात क्लियर है। तो यहां से लिखेंगे the EMF of cells are E1, E2, E3 and internal resistance is R1, R2, R3, R1, R2, R3, and the current produced by the cell and current produced by the cell क्या है बेटा आपका I1, I2, I3। okay, now the current drawn from the combination of the cell क्या हो जाएगा, now current drawn from the combination of cells कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। I is equal to the I1 plus I2 plus I3, that means the current produced by the cells या current produced by the individual cell, so I is equal to the sum of the current produced by the individual cells। I is equal to I1 plus I2 plus I3, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहां पर ये जो सर्किट्स नजर आ रहे हैं बेटा, ये आपका एक क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है, तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे एक लॉ जिसका नेम है किरचॉफ्स लॉ, और वो जो किरचॉफ्स लॉ टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इस वजह से मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूं, व्हाट इज द किरचॉफ्स लॉ। देयर आर द टू किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स एक होता है आपका किरचॉफ्स लूप रूल और दूसरा होता है आपका जंक्शन रूल।
तो यहां पर जो हम अप्लाई करेंगे लूप रूल, बिकॉज जो लूप रूल है वो क्लोज्ड सर्किट के लिए वैलिड है। तो यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे बेटा? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ या इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। ओके, पहले इसको जरा मेंशन कर देते हैं, फिर आफ्टर दैट बात करते हैं। इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ an electric circuit, the algebraic sum of EMF, the algebraic sum of EMF is equal to the product of resistance and current flow through it, that means बात समझिएगा, suppose this is the point A, this is the point B, and this is the point C, and this is the point D. This is a circuit, electrical circuit. अब हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले सर्च करते हैं क्लोज्ड पार्ट। तो फर्स्ट क्लोज पार्ट आपका क्या हो जाएगा? E1 A D C B E1, एक ये क्लोज्ड पार्ट हो गया, ये क्लोज्ड पार्ट, ठीक है। दूसरा क्लोज्ड पार्ट E2 A D C B E2, दूसरा क्लोज्ड पार्ट। तीसरा क्लोज्ड पार्ट E3 A D C B E3, तीसरा क्लोज्ड पार्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो इन सभी का जो ईएमएफ है, ईएमएफ का अलजेब्रिक सम, दैट मींस इस क्लोज्ड पार्ट में E1 A D C B E1 ईएमएफ कितना है? सिर्फ और सिर्फ केवल E1। तो E1 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लो थ्रू इट। तो एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस क्या है इस क्लोज्ड पार्ट में? कैपिटल R। इस पर कितना करंट फ्लो हो रहा है? I, और यही करंट इधर जाएगा, इस पर भी कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। So that means E1 is equal to, we can write what? IR1 plus IR, okay, इतना लिख सकते हैं। तो यहां से यही अप्लाई करेंगे बेटा। तो इधर देखो जरा, यहां से इन फर्स्ट क्लोज्ड पार्ट कौन सा है बेटा? E1 A D C B एंड फिर आफ्टर दैट E1, ये क्लोज्ड पार्ट बन गया ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑफ एन व्हाट? इलेक्ट्रिक सर्किट। ईएमएफ इज व्हाट? ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ केवल कितना है? E1 इज इक्वल टू द करंट, द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लो थ्रू इट। इसका रेजिस्टेंस है R, करंट कितना फ्लो हो रहा है? I, तो I इंटू कैपिटल R प्लस इधर आपका करंट कितना फ्लो है? I, और इसका आपका रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो ये आपका कितना हो जाएगा? I इंटू R1, कुछ इस वे से हो जाएगा। तो यहां से व्हाट वी कैन राइट, यहां से बेटा I करंट है, और ये क्या है आपका? I1 करंट इधर फ्लो होगा, I1 करंट। तो दिस इज व्हाट? I1 करंट। तो यहां से वी कैन राइट I1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR अपॉन R1, ठीक है। इन द सेम वे दूसरे क्लोज्ड पार्ट में पहुंचे, सेकेंड क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सेकेंड क्लोज्ड पार्ट, सेकेंड क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा क्लोज्ड पार्ट है? दैट इज E2 A D C B, आफ्टर दैट E2। इस पर कितना करंट फ्लो रहा है? I2। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर कितना करंट फ्लो रहा है? दैट इज I। तो यहां से द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, तो इस क्लोज्ड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ केवल सिंगल ईएमएफ है, तो दैट इज व्हाट? E2 इज इक्वल टू I इंटू R प्लस I2 into R2,
I2 into R2. तो यहां से we can write I2 is equal to A2 माइनस IR अपॉन में क्या हो जाएगा R2, I2 का वैल्यू हो जाएगा। इसको डाल दीजिए इक्वेशन 1, इसको या तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। फिर आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लोज पार्ट, तो यहां पर थर्ड क्लोज्ड पार्ट इज व्हाट, इधर मेंशन कर देते हैं E3A आफ्टर दैट D, फिर C, फिर B, फिर कितना हो जाएगा आपका E3। ये आपका क्लोज्ड पार्ट हो जाएगा। इतनी बात के लिए अब यहां से क्या करेंगे, वही अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करेंगे। The algebraic sum of the EMF to its closed part makes single EMF, and that's why we will write E3 is equal to the product of the resistance and the current flow through it। तो बेटा I into capital R, और एक साथ ही साथ में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I3, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R3। तो यहां से we can write बेटा I3 is equal to E3 माइनस I इंटू कैपिटल R अपॉन में क्या हो जाएगा I3। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो यू आर सीइंग दैट कि I1 कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, I1 का करंट यानी I1 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू कितना है, I3 का वैल्यू कितना है। या दैट मींस यू कैन से द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल 1, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल 2 एंड द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल 3। अब इन सभी की वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो आफ्टर दैट यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का वैल्यू इधर से E1 माइनस I इंटू कैपिटल R अपॉन R1 प्लस इधर क्या हो जाएगा E2 माइनस I इंटू कैपिटल R अपॉन R2 प्लस आपका कितना हो जाएगा इधर E3 माइनस I, शांत रहो यार, आपका क्या हो जाएगा E3 माइनस IR अपॉन में क्या हो जाएगा R3। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया I1 I2 I3 का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू वी कैन राइट व्हाट बेटा, इधर से लिखिए I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन क्या हो जाएगा R3। एक ये हो गया, ठीक है, एक ये माइनस इधर से आप IR कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और आपने इधर से क्या कॉमन किया हुआ है I इंटू R, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, यहां से अगर हम इस टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर दें, दैट्स व्हाई वी कैन राइट I प्लस I इंटू R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। यहां से I को कॉमन करेंगे बेटा, तो वी कैन राइट 1 प्लस कैपिटल R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन व्हाट R3। अब यहां से बेटा हमें टोटल करंट या द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, I का वैल्यू I इज इक्वल टू वी कैन राइट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 प्लस कैपिटल R 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा R3। ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया बेटा द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इस वजह से आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम उसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन गो एंड कमेंट बॉक्स ऑफ द यूट्यूब एंड कमेंट योर प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व योर whole problem. Thanks a lot for this video.